दिया। चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा, पीटीआई को दोबारा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दिया गया। पीटीआई ने फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा होते हुए दोबारा इंतखाबात। चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा, पीटीआई को दोबारा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दिया गया। पीटीआई ने फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा होते हुए दोबारा इंतखाबात कराए गए। दोबारा पार्टी इंतखाबात शिकायत मिलने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया था कि इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल नहीं किया। 8 June 22. However, the ECP, with its order dated 13 September 2023, held that PTI had failed to hold transparent, just and fair intra-party elections, unquote, and that instead of invoking the provisions of Section 215(5) of the Act, quote, a lenient view has been taken with direction to the respondent party to hold its intra-party elections strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, unquote, failing which it would, quote, be ineligible to obtain an election symbol for elections. A number of complaints were received by ECP alleging that intra-party elections were not held in PTI, and the ECP issued notice to PTI upon receipt whereof writ petition number 5791 was filed before the Peshawar High Court, and an ad interim order was obtained against the ECP that it should not pass a final order till the determination of writ petition number 5791. Subsequently, writ petition number 5791 was disposed of by the Peshawar High Court by directing the ECP to decide the matter by 22nd December 2023. The ECP passed order dated 22nd December 2023 in which it held that PTI had not complied with the directions issued by the ECP and it failed to hold intra-party elections in accordance with PTI's constitution, the Act, and the election rules of 2017. With the consequence that Section 215(5) of the Act would be attracted, pursuant to which PTI was declared ineligible to obtain the election symbol which it had applied for. It transpired that ECP had passed orders against 13 other registered political parties which were far more severe than the order passed against PTI. ECP wanted to ensure that PTI holds intra-party elections. The mere production of a certificate stating that such elections were held would not suffice to establish that intra-party elections had been held when a challenge was thrown to such an assertion. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court passed in WP number 6173P of 2023. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन करार दे दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से तैयब बलोच। बताइएगा, कोई खुश तो कोई नाराज दिखाई दे रहा है, क्या सूरत हाल है इस वक्त ताज़ा तरीन? जी, इस टाइम जो है वो तहरीक इंसाफ का तो साफ ज़ाहिर है उसका सियासी वजूद ही ख़तरे में पड़ गया है, तो उन्होंने तो इस फैसले को मायूस कुन ही करार देना है। लेकिन ये आवाम जानती है और हकीकत भी यही है कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना केस साबित करने में यकसर नाकाम नज़र आई। ख़ुद तहरीक इंसाफ ने अगर जो है वो इलेक्शन कराए ही थे, फॉर्मेलिटी के लिए ही कराए थे, खाना पूरी के लिए ही कराए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो उनको इस हवाले से जो लीगल होमवर्क है वो तो कम से कम कंप्लीट करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने जो है वो लीगल होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। आज जब सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बार बार मोहलत देती रही, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर के ऊपर अपना माइंड बना चुके थे कि कोई ना कोई गुंजाइश निकाली जाए, लेकिन गुंजाइश उस
उस वक्त ही निकल जा सकती थी जब तहरीक इंसाफ अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई रसीद, कोई दस्तावेज़ात जो है वो जमा कराती। लेकिन तहरीक इंसाफ के ना ही वकला ने जो है वो केस सही तौर के ऊपर उसका लड़ा और ना ही जो है उन्होंने कोई दस्तावेज़ाती सबूत पेश किए। तो ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के एक तरह के जो है वो हाथ खुद तहरीक इंसाफ नहीं बांध दिए थे। अब चीफ जस्टिस जो होता है या जो जज होता है वो आइन और कानून के तहत चलते हैं। वो आइन से हट के तो फैसला नहीं दे सकते, कानून से हट के फैसला तो नहीं दे सकते। अब तहरीक इंसाफ ने जो है वो इतनी कानूनी कोताहियाँ बरती हुई थी कि उनके अदालत के पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो इसी वजह से बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबी निशान बल्ला लेने का जो फ़ैसला है उसे बहाल किया और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है उसको मुअत्तल कर दिया। तो यूँ तहरीक इंसाफ जो है वो अब इंतखाबी निशान बल्ले के लिए जो है वो अहल नहीं रही। और जितने भी उसके उम्मीदवारान हैं जिन्होंने जो इस उम्मीद पे बैठे थे शायद वो उनको पार्टी टिकट मिल जाएगा और वो बल्ले पे इलेक्शन लड़ सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आज इस बड़े फैसले की वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो अब जो है वो बल्ले के निशान पर इंतखाबी इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकती। तो यही एक सबसे बड़ी वजह और रीज़न है कि जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को जो है वो मायूस कुन करार दिया है। अगर हम इसके दूसरा पहलू देखें तो ये फ़ैसला जो है वो आइन और कानून की फतह है। जब एक आइनी तौर के ऊपर इन सारी चीज़ों को परखा जाए तो आइन तो यही कहता है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो लाजमी कराने हैं, 5 सालों में होने हैं। और तहरीक इंसाफ को मुतअद्दिद मरतबा जो है वो वक्त दिया गया, जब इनकी हुकूमत थी तब से इलेक्शन कमीशन इनको वक्त फराहम कर रहा है, लेकिन उन्होंने जो है वो उससे फ़ायदा नहीं उठाया। और फिर एन लम्हे पे आके उन्होंने जो है वो भी फ़र्जी इलेक्शन थे। मतलब है उस हवाले से ख़ुद पाकिस्तान की आवाम ने और कौम ने जाना जब तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुनों ने आके तहरीक इंसाफ के इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान रिकॉर्ड कराए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए, तो साबित हुआ कि ये इलेक्शन जो हैं वो महज फ़र्जी इलेक्शन थे, एक फ्रॉड था। और यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दौरान समात ये कहने पर मजबूर हुए थे कि तहरीक इंसाफ ने अपने ऊपर जो है वो खुदकश इंसाफ अपने पाँव इसने खुद काटे हैं। अब इसका इल्ज़ाम अदलिया पे डालें, किसी पे भी डालें। अच्छा तैयब, ये बताइएगा कि आप आज सुबह से सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर मौजूद हैं, आपकी गुफ्तगू हुई है तहरीक इंसाफ के लोगों से, आगे के हवाले से कोई प्लानिंग कुछ नज़र आई है? क्योंकि बल्ला छिन गया है, प्लान बी आते ही नाकाम हो गया, प्लान सी तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि अब चूंकि तहरीक इंसाफ तो नहीं लेकिन जो मेंबरान हैं, जो उम्मीदवारान हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ें, फिर जो जीते हैं उनको यकजा करके किसी सूबे में थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन बनाई जा सके, इस तरह की कुछ प्लानिंग है अब? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो है तहरीक इंसाफ के वकला से भी हमारी बात हुई तो वो तो मायूस हो चुके थे। मतलब है उनकी मायूसी भी उन्होंने यहाँ पे पब्लिकली भी इस चीज़ का इजहार किया कि ये फ़ैसला मायूस कुन है और उस मायूसी की वजह से वो ख़ुद अब अबहाम का शिकार हैं कि वो क्या करें। उन्होंने जो भी प्लान बनाए वो प्लान उनके कामयाब नहीं हो सके। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान अलाट करने का वक्त भी वो नहीं रहा और फिर इनके पास वो भी चारा नहीं है कि ये किसी और तंजीम के साथ पॉलिटिकल अलाइंस में जा सके, लेकिन वो भी निशान अलाट करने का वक्त जो है वो अब नहीं बचा। तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ जो आप कह रहे हैं कि शायद उनकी हैसियत जो है, जो तहरीक इंसाफ के पार्टी पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनकी हैसियत अब आज़ाद उम्मीदवार की सी हो जाए और फिर वो आज़ाद इलेक्शन लड़ के आए तो फिर उसका आफ्टर इलेक्शन ही जो है या पोस्ट इलेक्शन जो है वो उसके नताइज देखना पड़ेंगे कि वो फिर किस सूरत हाल या सूरत हाल किस तरीके से इमर्ज होती है। लेकिन फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के पास अब कोई ऐसा चारा नहीं रहा कि बतौर पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ सके। तो यूँ यही कहा जा रहा है, ख़ुद तहरीक इंसाफ के कुछ वकला ने यही कहा कि हमारा जो सियासी वजूद है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से वो ख़तरे में पड़ गया है। और ताम अभी जो है वो बैरिस्टर गौर जो है गए हैं तो अपने सीनियर जो उनके पार्टी के मेंबरान हैं उनसे भी मुशावरत करेंगे, वो अपना लाए अमल पॉलिटिकल जो भी इख्तियार करें। लेकिन आइनी और कानूनी तौर के ऊपर हमें एक चीज़ वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ के पास अब कोई और चारा नहीं रहा। बज़ाहिर हमें यही नज़र आ रहा है कि उनके जो उम्मीदवार थे जो पार्टी पे के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते थे, शायद अब वो उनकी हैसियत जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की सी हो
क्योंकि हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहले भी एक इस किस्म का नोयत का फैसला आ चुका है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह को जो है वो नायल किया गया था, तो फिर उसके बाद जो सेनेट में उनके उम्मीदवार थे जिनको उन्होंने पार्टी टिकट भी दिया हुआ था, तो उनकी हैसियत आज़ाद हो गई थी। तो इसी वजह से अब हमें यही नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जिन्होंने जो है वो पार्टी टिकट या जमा करा चुके या जो कराने के जो है वो उम्मीदवार थे कि हम कराएंगे, तो उनकी हैसियत अब हमें यही नज़र आ रही है कि इस 2024 के इंतखाबात में जो है वो आज़ाद हैसियत की ही होगी। जी अच्छा तैयब, ये भी ज़रा वाज़ेह कीजिएगा कि अब इंतखाबी निशानात अलॉट होने का वक्त भी पूरा हो गया। अब वो जो उम्मीदवार जिन्होंने पीटीआई की तरफ से जो है कागजात नामजदगी जमा कराए थे, अब वो जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहेंगे, उनका क्या प्रोसेस होगा? देखिए, अब उनके पास जो है वो पार्टी टिकट तो नहीं रहा, उनके पास इंतखाबी निशान भी नहीं रहा, उनके पास ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन सिर्फ यही है कि वो इलेक्शन कमीशन को और आरओज़ को यही कह दें या फिर आरओज़ अपने तौर पे फैसला कर दें कि इन्होंने पार्टी टिकट चूँकि जमा नहीं कराए, अब इनकी हैसियत आज़ाद होगी। तो जो आज़ाद होता है तो उसको जो इंतखाबी निशान अलाट होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मुनसर होता है कि उसको क्या निशान अलाट करता है। बैरिस्टर गौर खान जिसके अंदर अंदर ये काम करना होता है, ये फॉर्मेलिटी करनी होती है, का इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया है। यानी खुद तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर खान, उनकी हैसियत भी आज़ाद हो गई है। तो इसी तरीके से तमाम अब उनके जो उम्मीदवार थे उनकी हैसियत आज़ाद होगी और उनको इंतखाबी निशान इशू करने का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन अपने तौर के ऊपर करेगा। जी अच्छा, ठीक है तैयब, ये भी साथ साथ बताएगा कि जिस तरह ये फैसला आया और फैसला आने के बाद बैरिस्टर गौहर ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है, तो उन्होंने नजर सानी अपील दायर करने का कहा गया है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, बात यह है कि वो नजरसानी अपील भी दायर करे, लेकिन क्या होगा, वक्त तो गुजर चुका, काम तो आपने वक्त पे करना होता है। जब आप ऐन वक्त पे काम नहीं करते तो फिर जो है वो अब इलेक्शन प्रोसेस है, इसमें तो चीज़ें डिले नहीं हो सकती। 8 फरवरी को तो इलेक्शन तय है। अब जितनी भी चीज़ें हैं वो 8 फरवरी की तरफ ही उन्होंने जाना है और उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। अब सपोज़ करो, फ़र्ज़ करो इन्होंने जो है वो यहाँ पे आ भी गए जो है नज़रसानी में, तो वो मंडे को जाके दायर होगी और फिर उस पर नंबर लगेगा, फिर उसकी कब समात होगी, उस वक्त तक तो इंतखाबी निशान लाट करने वाला और वो सारी लिस्टें भी फाइनल हो चुकी होंगी कि कौन कौन पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा, किसको इंतखाबी निशान मिला है और कौन आज़ाद हैसियत में है। तो वो नज़रसानी का कोई खातिर खा इनको फ़ायदा जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्त जो है वो जैसा हमने सुना है और कहा जाता है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो वक्त जो है वो तो अब तहरीक इंसाफ की उस नज़रसानी दरख्वास्त का तो इंतज़ार नहीं करेगा, उसने तो गुजरना है और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तयशुदा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया, जो प्रोग्राम जारी किया गया, चीज़ें तो उसके तहत चलनी है। ये ना ही तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेंगी और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक चलेंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला कर दिया। अब नज़रसानी में का जो है वो बेशक वो नज़रसानी दायर कर सकते हैं, उनका लीगल और कानूनी राइट है, लेकिन नज़रसानी दायर करने के बावजूद जो है तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जी अच्छा तैयब, अगर बात की जाए उम्मीदवारों के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ने के हवाले से, तो ये बात भी फैक्ट है कि इंतखाबात में एक बड़ी तादाद वोटर्स की ऐसी होती है, लाखों करोड़ों की तादाद ऐसी होती है जो किसी भी पार्टी के इंतखाबी निशान को तो पहचानते हैं, लेकिन उम्मीदवार का नाम भी शायद उनको पता नहीं होता, उसको वो ज़ाती तौर पर नहीं पहचानते हैं। फिर ऐसे उम्मीदवार जब एक नए इंतखाबी निशान के साथ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ेंगे, तो जो किसी पार्टी में रहते हुए, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए जो उनकी पोजीशन बन सकती थी वो तो उनको हासिल नहीं होगी। फिर बिल्कुल यही तो तहरीक इंसाफ की कोशिश रही, एंड तक वो ये कोशिश करते रहे कि उनको इंतखाबी निशान मिल जाए, क्योंकि मोस्टली तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है और ख़ासकर जो दही पॉपुलेशन है जो देहातों में रहती है, वो तो इंतखाबी निशान को ही जो है वो देखती है। मोस्टली उनको यही पता होता है कि कौन सी पार्टी का क्या इंतखाबी निशान है और हमने किस इंतखाबी निशान पर ठप्पा लगाना है। तो इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार अगर उनकी हैसियत आज़ाद होगी तो वो चेहरे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके इंतखाबी निशान ये फिर
तहरीक इंसाफ के उन लोगों पे जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे होंगे, ये उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने वोटर्स को जो है उस तक अपना इंतखाबी निशान जो उनको मिलेगा वो पहुँचाएँ और कहे जी हम इस इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसको जो है वो किया जाए, इस पर ठप्पा लगाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की मोस्टली पॉपुलेशन जो है ख़ासकर जो देहाती इलाकों में रहती है वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, और इवन कि हमने देखा कि बैलेट पेपर पर जो इंतखाबी निशान होते हैं वो उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़ईफ़ होते हैं, उनकी नज़र का भी मसला होता है, तो वो उनमें भी ज़्यादातर पहचान नहीं कर सकते। बस उन्होंने अपनी तौर के ऊपर कुछ निशानियाँ फ़िक्स की होती हैं। जैसे बल्ला एक मशहूर निशानी है कि पब्लिकली पाकिस्तान के तकरीबन बच्चा बच्चा और सब जानते हैं, तो अगर ये नहीं होगा तो कोई और निशान होगा, तो ये वाकई उन वोटर्स के लिए जो है वो बड़ा मसला होगा और उन उम्मीदवारों के लिए भी सबसे बड़ा मसला होगा। तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ की तो ये आखिरी दम तक कोशिश रही थी कि किसी तरीके से बल्ले को वो बचा पाए, लेकिन वो बल्ले को अपने तौर के ऊपर ही उनकी अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ थी जिसकी वजह से इंतखाबी निशान बल्ला उनसे छिन गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलोच। आज सुबह से तमाम तर जो सिचुएशन अब तक रही है उस हवाले से तौर पर आगाह किया और आगे के जो मामलात हैं उसका मंजरनामा भी आपने हमारे साथ शेयर किया। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। और ख़बर है कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन करार दे दिया। नज़र-ए-सानी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े फैसलों में आज नए बाब का इजाफा हुआ है। इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बल्ला रहे ना रहे, अवाम बानी पीटीआई की आवाज़ पर वोट देंगे। अली जफर ने कहा कि तारीख ही अब इस फैसले पर फैसला करेगी। स्ट्रेटजी हमने बना ली थी, फिक्र की बात नहीं, हमने तैयारी की हुई है। सुप्रीम कोर्ट फैसले से बहुत मायूसी हुई है। इंशाल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, भला रहे न रहे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ पे वोट देंगे। अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस फैसले पे तो बहुत बात होगी और यकीनी तौर पे तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। उनके लिए स्ट्रेटजी वो हमने बनाई हुई है, पहले से हमें अंदाज़ा हो गया था कुछ दिनों से कि ये फ़ैसला क्या होगा। उसके लिए तैयारी पूरी है और इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं है। तो दूसरी जानिब अकबर एस बाबर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह फैसला जमहूरियत के लिए एक नई समत का तयन होगा। अपने मौक़िफ़ के लिए तवील जद्दोजहद की तफसीली फैसले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आएगी। तमाम सियासी जमातों को इस अमल में शामिल होना होगा। ने उस मौक़िफ़ की तजदीद की है और हमें पूरा यकीन है कि जब वो तफसीली फ़ैसला आएगा उससे पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो भी सामने आएगी और ये अमल जो है अब यहाँ रुकेगा नहीं। ये जमहूरी अमल जो है ये मज़ीद आगे बढ़ेगा, मज़ीद इसमें तवाना होगा और ये तमाम सियासी जमातों को इसमें इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रोल मॉडल बनना था, आज हमने उसकी तरफ एक अमली कदम उठाया है। तहरीक इंसाफ के अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट का मामला चेयरमैन अख्तर इकबाल डार को खुद सामने आना पड़ गया। लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो टोक बता दिया कि तहरीक इंसाफ वालों को कोई टिकट जारी नहीं किए। तशवीश हुई कि पीटीआई वालों को पीटीआई नजरियाती के टिकट कहां से मिले। पीटीआई के साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं, मामले की तहकीकात करना इलेक्शन कमीशन का काम है। उन्होंने नजरियाती के टिकट हासिल करने पर तशवीश का इजहार किया। हम इन ये टिकट उन्होंने इशू की हैं,
मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं, हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दे दिया ना कि किसी पार्टी का कारकुन, किसी पार्टी का उम्मीदवार किसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जिन्होंने फौजरी की है, जिन्होंने ये काम किया है, ये इलेक्शन कमीशन करेगा ना। मैं थोड़ा वाज़ेह करता चला जाऊं कि PTIN 2007 में मैंने फील किया, महसूस किया कि दौंस धांधली, गुंडागर्दी, पैसे की सियासत, इलेक्टेबल्स की सियासत को डिस्करेज करने के लिए, शफाफियत को प्रमोट करने के लिए PTI वाले बात करते हैं। गुजरांवाला में PTI उम्मीदवारों ने PTI नजरियाती के टिकट वापस लेने की दरख्वास्तें रिटर्निंग ऑफिसर्स को जमा करवा दी हैं। आज़ाद उम्मीदवार का निशान अलॉट करने की इस्तदा की। आरोज ने उम्मीदवारों की इस्तदा पर आज़ाद निशान अलॉट कर दिए। NA 79 से PTI उम्मीदवार राना साजिद शौकत को इंतखाबी निशान विकेट मिल गया। PTI उम्मीदवार अरकम खान को रैकेट का इंतखाबी निशान मिला। NA 66 से PTI उम्मीदवार अहमद चट्ठा को प्याले का इंतखाबी निशान मिल गया। PTI उम्मीदवार सुहेल जफर चीमा को प्याला इंतखाबी निशान मिल गया। PTI उम्मीदवार नासिर चीमा को रोलर कोस्टर इंतखाबी निशान अलॉट हो गया। PTI उम्मीदवार बिलाल नासिर चीमा को स्टेबलाइजर का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। अटक में भी PTI उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। NA 49 से मेजर ताहिर सादे को भेड़ का निशान और NA 59 अटक 2 से ईमान ताहिर को वाटर टर्बाइन का निशान दिया गया। अटक PP3 से एजाज हुसैन बुखारी को बैट्समैन का निशान, PP4 से मलिक जमशेद अल्ताफ को तवे का निशान, PP5 से सरदार मुमताज़ मार्जिया को प्याले का निशान अलॉट किया गया। पंजाब में पुलिस का एक्शन। टेक्सला से साबिक सूबाई वज़ीर खेल और सकाफत मलिक तैमूर मसूद अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा NA 136 से PTI के टिकट होल्डर चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को भी धर लिया गया। मेलसी में भी पुलिस की कार्रवाई। NA 159 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर औरंगजेब खान कच्छी को भी हिरासत में ले लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।